السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے قریب سب سے بڑی پریشانی ایک موٹاپا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا جو موٹاپا ہے اسے ہم کیسے کم کریں اور کیا کریں کہ ہمارا موٹاپا کم ہو جائے۔ یہ موٹاپا کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے جوجھتا ہے اور بہت سی پریشانیوں کو اٹھاتا ہے۔ لوگوں کے بیچ میں بھی اگر وہ شامل ہو تو اسے شرم آتی ہے کہ اس کا شریر اتنا موٹا ہے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں جس سے لوگ پریشان رہتے ہیں، اور موٹاپا کو کم کرنے کے لیے بہت کچھ کھانا پینا بند کیا، بہت اچھے فوڈس کھانا چالو کیا، پھر بھی موٹاپا جیسی پریشانیوں سے آج جوجھ رہے ہیں۔ موٹاپا کو کم کرنے کے لیے لوگوں کی الگ الگ بات سنیں اور لوگوں کے الگ الگ کہنے کے انوسار الگ الگ طریقے سے ایکسرسائز بھی کیا، لیکن پھر بھی یہ موٹاپا جیسی پریشانیوں سے پریشان رہ رہے ہیں۔ بہت دوڑا اور بہت بھاگا، پھر بھی یہ پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کیا ایسا کام کیا جائے جس سے ہم لائف ٹائم اپنے باڈی کو فٹ رکھ سکیں اور ہمیشہ صحت مند رہ سکیں؟ آخر ایسا کون سا طریقہ ہے جسے ہم اپنا کر لائف ٹائم صحت مند رہ سکتے ہیں؟ اور بالکل یہ 100% یہ کام کرنے والی ہے جو آج ہم لوگ کو طریقہ معلوم چلنے والا ہے، اور یہ طریقہ ہماری زندگی کی لائف اسٹائل بدل دے گی انشاءاللہ۔ تو آپ سبھی کو اس چینل سے اسلام کو بہت ہی آسانی سے سمجھایا جاتا ہے، اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل کر دیجئے اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے پھر ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں جس سے ہمارا موٹاپا کم ہو جائے اور ہم لائف ٹائم ہمیشہ صحت مند رہیں۔ ہمارے پاس اتنی بڑی پریشانی اس لیے آتی ہے کہ ہمیں اس بات کا نالج ہی نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے موٹاپا بڑھتا ہے، کس وجہ سے ہم دن پر دن موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کس وجہ سے ہمیں یہ بہت بڑی پریشانی لگ جاتی ہے، اور کھانے پینے کا تمام نسخہ بھی اپنا لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ مت کھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ مت پیو، کوئی کہتا ہے ایسا نہ کرو، کوئی کہتا ہے ویسا نہ کرو، اور اس طرح سے ہم بالکل کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ موٹاپا کا ریزن کیا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے اور اسے کنٹرول کیسے کیا جائے۔ ویسے جو آج میں آپ لوگ کو طریقہ بتانے والی ہوں، اس میں آپ کا ایک بھی روپے خرچ نہیں ہونے والا، نہ آپ کو ایکسرسائز کرنا ہوگا، نہ آپ کو کسی کھان پین میں کمی کرنی ہوگی، اور نہ ہی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ آپ کے روتے ہوئے چہرے کو مسکرانا سکھا دے گی۔ آپ کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی ہم کو صحت ملنے والی ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہے جسے ہر کوئی کر سکتا ہے، اور اس طریقے پر عمل کر کے ہم اپنی صحت کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر پریشانی کا حل بتایا ہے، تو کیا ہماری صحت کا نہیں بتایا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمتوں میں یہ ایک سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہمارا صحت ہے، اور اس کی حفاظت ہمارے لیے فرض ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ انسان کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا شریر اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے حفاظت میں رکھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور وہی طریقہ آج آپ لوگ کو معلوم چلنے والا ہے، اور اس طریقے کو اپنانے کے بعد آپ گھر بیٹھے بغیر پیسے خرچ کیے، بغیر کوئی محنت کیے، بغیر ڈائٹ کیے آپ کا باڈی فٹ ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ نالج رکھیں کہ موٹاپا بڑھنے کا ریزن کیا ہے اور کیوں موٹاپا بڑھتا ہے۔ موٹاپا بڑھنے کا ریزن یہ ہے کہ ہماری جو باڈی پارٹس ہے
उसके वर्क यानी कि उसके काम धीमे पड़ना, उसके काम से ज़्यादा उसे काम देना, ये एक मोटापा बढ़ने का बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग काम हैं और सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। अगर हम उनकी जिम्मेदारियों को समझते हुए उनको काम देंगे तो इंशाअल्लाह वो अपने काम को पूरी तरह निभा पाएंगे और उसके बाद फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा फैट बढ़ने का रीज़न ये होता है कि हम अपनी बॉडी को उतना काम सौंप देते हैं जितना वो कर नहीं सकता और उसके बाद फिर वो हमारे लिए परेशानी बन जाती है। जैसे कि एक खाली ग्लास है और उसमें हम पानी डाल रहे हैं, ग्लास उतना ही पानी रखेगी जितना उसके अंदर जगह है। अगर उस ग्लास में पानी भरने के बाद भी हम पानी डालते रहें तो क्या होगा कि पानी नीचे बहने लगेगा। यही हाल हमारे बॉडी पार्ट्स का भी है। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को उसकी ताकत और उसकी जगह होने से ज़्यादा हम उसे काम देते हैं तो फिर वो कमज़ोर हो जाता है और फिर वो अपना काम धीमे करने लगता है और उसके अंदर जो चीज़ें जा रही हैं उसे वो बाहर फेंकने लगता है और जिसके वजह से फिर हम मोटापा जैसी एक बहुत बड़ी परेशानी को झेलना चालू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे समझें, उसका ख्याल कैसे रखें और उसे कितना काम दें कि वो उस काम को पूरा कर सके और उसकी ताकत दिन पर दिन बढ़ती चली जाए, जिससे हमारा बॉडी फिट हो जाए और हम हमेशा तंदुरुस्त और खुश रहें। अब हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को क्या काम देते हैं। तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को खाने और पीने का काम देते हैं। जो भी हम खाते हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसे वो सही वक्त पे पचा सके और एनर्जी बाकी बॉडी पार्ट्स को वो ट्रांसफ़र कर सके और वेस्ट चीज़ को फिर वो जल्द से जल्द बाहर कर सके। तो हम क्या खाते और पीते हैं इसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम खाएं और पिए कैसे। तो इसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बहुत ही आसान रास्ता दिखाया है और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीके पर अमल करते भी पाया है। तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम भूख के बगैर नहीं खाते और पेट भरकर नहीं खाते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अच्छी तरह से भूख ना लगे हम खाना नहीं खाते और हम पूरे पेट भर के खाना नहीं खाते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा भूख लगती तो आप खाते और आपकी भूख बाकी रहती तो आप खाने से उठ जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में खाना जाता है, दूसरे हिस्से में पानी और तीसरे हिस्से में हवा जाता है। हम इंसानों की यही सबसे बड़ी गलती चालू हो जाती है कि हम अपने पेट के तीनों हिस्सों में खाना ही भर देते हैं। अब ज़रा आप खुद सोचें कि जो हिस्सा बटा हुआ है जिस चीज़ के लिए, अगर वो उसमें नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। जब हम अपने पेट को खाने से ही भर देंगे तो फिर हवा और पानी कहाँ जाएगी। यही सबसे बड़ी गलती है जो हम अपने लाइफ में करते हैं। जितना मन चाहता है खाते चले जाते हैं और हम ये सोचते भी नहीं हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स को उतनी ताकत है भी या नहीं। और इसके वजह से फिर हमारा मोटापा, हमारा बदहज़मी और फिर अनेक तरीके की बीमारियां चालू हो जाती हैं और बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ जाता है। हम जो पसंद से खा सकते हैं, मोटापा होने के बाद उसे खाना बंद करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता दिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पेट के जो 3 हिस्से हैं उसे वैसे ही इस्तेमाल करें जिसके लिए वो बना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम भूख के बगैर नहीं खाते और पेट भर के नहीं खाते। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगे तो ही हमको खाना है और
हमको पेट भर के नहीं खाना, हमारी भूख बाकी रहे, खाने से उठ जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने को छोटी छोटी निवाले में और खूब चबा कर खाना है, क्योंकि जब हम छोटा निवाला लेते हैं और उसे बहुत ही अच्छी तरह से चबा के खाते हैं तो हमारी दांत वो काम कर जाती है जो काम हमारे बॉडी पार्ट्स को करनी पड़ती है। तो आधी काम जो हमारी दांत कर देती है और बाकी काम हमारे बॉडी पार्ट्स कर देते हैं। ये साइंस से भी साबित है। आप खुद भी किसी डॉक्टर से जाकर सलाह कर सकते हैं। डॉक्टर आपको यही कहेंगे कि आप थोड़ा खाएं, चाहे आप कितना बार भी खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं और खूब चबा के खाएं। ये नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में पहले से मौजूद है। तो हम ये तरीक़ा अपनाएं कि हम भूख लगे बहुत ज़्यादा तो खाएं और पेट भर के ना खाएं और खाने को छोटे छोटे निवाले में खाएं और इसे खूब चबा के खाएं। क्योंकि हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट एक ऐसा बर्तन है जो कभी नहीं भरता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि इब्ने आदम की औलाद के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं खड़े होने के लिए। तो अगर ज़्यादा खाना है तो 1/3 खाओ, 1/3 पियो, 1/3 खाली रखो। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अगर एक इंसान ज़्यादा खाना चाहता है तो 1/3 खाए। जैसे कि कोई 9 रोटी खाता है तो उसे चाहिए कि वो सिर्फ 3 ही रोटी खाए। तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1/3 उसे खाना चाहिए, 1/3 उसको पीना चाहिए और 1/3 उसे खाली रखना चाहिए अपने पेट को। तो ये तरीका अपनाएं। जब हम ये तरीका अपनाएंगे तो हमारी सेहत हमारे साथ होगी और हम अपनी मनपसंद चीज़ भी खा सकेंगे। और हमारा खाना पीना भी अगर सवाबे अज़्र बन जाए तो कितनी बेहतरीन बात है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन सिर्फ़ इसलिए खाता और पीता है कि उसे उतनी ताकत अता हो कि वो अल्लाह के रास्ते में अपना वक्त लगा सके, अपनी ताकत लगा सके। तो जब एक मोमिन इंसान इस नीयत से खाता है कि मुझे खाकर इसे ताकत मिले और फिर मैं अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद कर सकूं, तो ये खाना उसके लिए सवाबे अज़्र बन जाता है और इबादत भी बन जाता है। तो हमें ऐसी नीयत करके ही खाना और पीना चाहिए जिससे हमें सवाबे अज़्र मिले और हमारी खाने पीने के अमल को इबादत में गिन लिया जाए। तो आज हमें खाने का तरीका मालूम चल गया कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए और हम किस तरह से मोटापा से बच सकते हैं। इसके अलावा हमें पानी कैसे पीना है और किस तरह से पीना है, ठंडा और गर्म का क्या मामला होगा और हमें खाने और पीते वक्त किस तरह से बैठना है, ये सब कुछ हमें आने वाले वीडियो में इंशाअल्लाह मालूम चलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में इंशाअल्लाह हम और आगे जानेंगे कि हमें खाने और पीते वक्त किस तरह से बैठना है, हमें कितना ठंडा कितना गर्म खाना है और इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिसे हम जानेंगे आने वाले वीडियो में। आपके लिए ये वीडियो कितनी मददगार थी आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।